Hello friends, this is Dikshit sir with a new video on capital and revenue expenditure. Before beginning with the presentation, let me give you some examples. Just try to imagine your branch has purchased some ATM machines to be installed. Example 1. Second example, your bank or your branch renovated the branch, changed the furniture and sold out the old furniture in your branch. Fine. One more example, you paid electricity bill of 4,32,000 rupees of your branch. One more example, you bought some paper stationery for rupees 40,000 and you consumed it this month. Now a layman, what he will say is these are the total expenses which our branch or our bank did. Fine. And so what you will do is you will reduce or deduct these expenditure or expenses from your revenue this month, and then you will come down to your profit. Fine. This is what a layman will do. But friends, this is not the way it happens in accounting. To be more specific, I'll give you one more funny example. Last month, me and my spouse, my wife, we went and we bought an oven. Okay, so it was a surprise for my spouse, and she said, why did you did such amount of big expenditure? It was almost 15,000 rupees oven. So I said, see, it's not an expenditure. And she shouted at me, and again we had a tussle that, oh no, that's a big expenditure in this lockdown period, why you spend 15,000 rupees. Okay, so I have also sent this video to my wife, and she, after watching this video, she came down to know that it's not expenditure, it was an investment in asset. So this is how it goes. Now let us talk of banking examples. I gave you funny example in the beginning to make my video more wonderful, more interesting. Let us start with slide number 1. To calculate, see what's written over there. To calculate, can you see this? To calculate net profit of any business, revenue income is to be matched with revenue expenditure. It's very simple. To calculate profit, you need to deduct the expenditure from your income. Perfect. But sir, we are in doubt. I heard some voice from your heart, from your brain. I could hear that. Sir, what do you mean by this revenue income and revenue expenditure? Because we only know what is income and what is expenditure. Fine. So that's what I am here today with this video, to let you know or to make it very clear what is revenue and what is capital. Fine. So this is revenue income generated in a business, then you have to deduct the revenue expenditure from it, and then you get or you come down to net profit of your business. Whereas look at the second line, in a business there is capital receipt as well as capital expenditure. Fine. Before again going in details, I gave you 4 examples. Do you remember a couple of minutes back? Okay, so in those examples, purchase of ATM machine, then second it was purchase of furniture for your branch. These are capital expenditures, whereas electricity bill and paper stationery was a revenue expenditure. Again come down to my funny example, I bought oven as a gift for my wife. That was capital expenditure for our family. That was not a revenue expenditure. So it is not to be considered in profit and loss account of this year. Hope you are getting a bit. We'll move on for the detail. Next slide please. The facts to be considered. Look at the title, the facts to be considered while determining whether expenditure is revenue or capital. See, these are the facts, or these are some of the titles which I have written over here. You will go through this and then you will decide whether the expenditure is a revenue type or capital type. Fine. So first is source of payment. The line is very clear, whether made from loan or own capital. Friends, do you understand the difference between loan and own capital? Let us talk of a Kirana shop. Fine. He has taken a CC limit from your bank or loan of rupees 5 lakhs from your bank, correct? So that is his loan, and he has invested his own
amount or money from his home rupees 5 lakh. So total he has 10 lakh of rupees, correct? But out of this 10 lakh, 5 lakh is loan and 5 lakh is his own capital. So and now he's purchasing some asset, or he's doing some purchasing, clear? So the amount which he is paying, the source is not important. Friends, please be very clear, the source is not important. The line, just go through it. The purpose of payment is more important. Now if that kirana shop wala, what he does is he buys or he purchases furniture for his shop, then it will be capital expenditure. And if from the amount he buys stock for sale, for future sale in his shop, then it is revenue expenditure. मैं और उसी एग्जांपल को और क्लियर करता हूँ. देखो, एक किराना दुकानदार है, वो अपने पैसे से अगर फर्नीचर ख़रीद के लाता है तो वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. अगर वो दुकान में बेचने के लिए माल ख़रीद के लाता है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. तो इसका मतलब वो पैसा कहाँ से ला रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो किस चीज़ पर खर्चा कर रहा है ये इम्पॉर्टेंट है. आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस deliberately. Some people might be very much comfortable with Hindi, and here it's unimportant, it's not a grammatical or a language classroom. Here the concept is revenue and capital expenditure, which needs to be understood. Fine, so I'm using both the languages. The second point is amount. Capital or revenue expenditure does not depend on whether the amount is large or small. बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि बड़ा पैसा खर्चा किया म्हणजे कैपिटल एक्सपेंडिचर और छोटा पैसा कम पैसा खर्चा किया म्हणजे रेवेन्यू. ये गलत धारणा है, इसको भूल जाइए. अमाउंट इज़ इमटेरियल. ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अमाउंट छोटा है बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करेक्ट? नाउ इफ़ यू से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बॉट अ पेन ड्राइव, ठीक है, नाउ पेन ड्राइव्स आर नॉट दैट मच कॉस्टली. से आई बॉट अ पेन ड्राइव फॉर ₹200. सो 200 रुपीज़ एंड अ कंप्यूटर फॉर ₹20,000. सो आप बोलोगे 20,000 रुपये का कंप्यूटर है तो वो कैपिटल है और पेन ड्राइव एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो गलत है. बोथ द थिंग्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर. तो आप बोलोगे सर हमको अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि आप कब बोल रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए कुछ देर रुक जाइए. अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि आपको ये टाइटल्स पर हाईलाइट करना है, सोर्स देखना है, सोर्स ऑफ पेमेंट को देखना नहीं है, पर्पस ऑफ पेमेंट देखना है, अमाउंट को देखना नहीं है, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है वो देखना है. पॉइंट नंबर 3, बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपेंडिचर. देखिए, आप तीसरा पार्ट देखोगे कि वो जो खर्चा आपने किया है उसका बेनिफिट आपको एक ही दिन मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म मिल रहा है. एक मज़ेदार एग्जांपल से आई बॉट एन ओवन. आप बोलोगे सर आप ओवन का एग्जांपल, लेकिन मुझे पता है ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. मेरे घर में ओवन आया, उसके लिए मैंने अंदर बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस ख़रीद के लाया. तो पिज़्ज़ा बेस लाया, उसमें पकाया और मैं खा गया, तो वो हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और जो ओवन पर खर्चा करके मैंने ओवन ख़रीद के लाया, जिसका बेनिफिट हम अगले 5 साल तक 10 साल तक लेने वाले हैं, तो ये आपको देखना है कि वेदर you are going to take the benefit, you are going to consume it immediately or going to use it for a long term. Fine. The fourth point is आपको देखना है कि एक्सपेंडिचर जो आपने किया है वो रेकरिंग है कि नहीं है. रेकरिंग म्हणजे वो रिपीट होने वाला है कि नहीं है. फाइन, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. द फिफ्थ पॉइंट इज़ द मैनर ऑफ पेमेंट. वेदर लमसम और इंस्टॉलमेंट इज़ इमटेरियल. फ्रेंड्स लुक हियर. देखो, हमने क्या किया, मैंने एक टेलीविज़न सेट, या फिर से वही एग्जांपल मज़ेदार, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ओवन ख़रीद के लाया, ठीक है. और ओवन को मेरे पास पैसा नहीं था, लॉकडाउन शुरू है, आई डोंट हैव एनी अर्निंग, सो मेरे पास पैसा मेरा ख़त्म हो गया. तो मैंने क्या किया, आई बॉट इट ऑन EMI इंस्टॉलमेंट एंड आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू अरेंज द इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500, अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ. तो 500 रुपये का खर्चा हमने किया और हमने ओवन ख़रीद के लाया, ठीक है. तो 500 रुपये तो अमाउंट छोटा है और मैं इंस्टॉलमेंट में भर रहा हूँ, तो कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? नो. आपको पेमेंट कैसे हो रहा है ये देखना नहीं है. फिर से सेम वर्ड आई एम हाईलाइटिंग अगेन, यू हैव टू चेक द पर्पस फॉर विच यू आर स्पेंडिंग. सो हियर आप पैसा एक साथ 15,000 रुपये दे रहे हो कि 500 रुपये महीना दे के वस्तु ख़रीद के ला रहे हो, ये इमटेरियल है. आपको देखना है कि आप क्या ख़रीद के ला रहे हो और उसका यूज़ क्या है. बातें आ रही है समझ में? फाइन.
द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। फ्रेंड्स, इसके लिए अब O1 काफ़ी हो गया। अब आपके बैंक का एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताइए, ATM मशीन इंस्टॉल जब आप करते हो ब्रांच में, तो क्या होता है उससे? आपका कस्टमर को सर्विस देने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आप अंदर कस्टमर आएगा, काउंटर पे खड़ा रहेगा, तो दिन भर में आप 200 कस्टमर्स हैंडल करोगे। ATM मशीन लगाओगे तो दिन में 300 हैंडल कर सकोगे, म्हणजे आपका रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो आपको चेक करना है कि आपने जो खर्चा किया है उससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया है कि आपका पैसा कंज्यूम हो गया है। फाइन, सो दीज आर द पैरामीटर्स विच यू आर सपोज टू लुक बिफोर गोइंग अहेड एंड डिसाइडिंग वेदर इट इज़ कैपिटल और रेवेन्यू। फ्रेंड्स, ये एक स्लाइड है, इसमें मैंने सिर्फ 4 टाइटल्स लिखे हैं। इसके ऊपर हमको आज सीखना है। एक्सपेंडिचर के 2 प्रकार है, वन इज़ कैपिटल एंड वन इज़ रेवेन्यू। और रिसिप्ट के भी 2 प्रकार है, वन इज़ कैपिटल रिसिप्ट एंड वन इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, नाउ एक एक टाइटल्स मैं दे रहा हूँ और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और तब आपको पता चलेगा ये कब कैपिटल बोलना है और कब रेवेन्यू बोलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नीचे लिखे हुए जो टाइटल्स है, और फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टाइप ऑफ कैपिटल इन नेचर। लाइक नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ एन असेट। पहले देखिए, अगर कोई भी बिजनेस में असेट एक्वायर होता है, असेट्स मतलब कि जिसका यूज़ करके बिज़नेस बढ़ाने वाले हो और जिसके ऊपर आप बिज़नेस करने वाले हो। देखिए, अब इसमें एक मज़ेदार एग्जांपल, आपके बैंक ने फर्नीचर ख़रीदा तो वो आपके लिए एक्विजिशन ऑफ असेट होगा, करेक्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कोई फर्नीचर का शॉप है और वो फर्नीचर ख़रीद के लाता है दिल्ली से, और यहाँ बॉम्बे में वो बेचने के लिए ला रहा है, करेक्ट। तो उसके लिए फर्नीचर ये असेट नहीं होता है, रादर दिस इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कौन से प्रकार का बिज़नेस है ये भी डिसाइड करेगा। देखिए, और एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब गोल्ड खरीदता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरे घर के लिए एक एक्विजिशन ऑफ असेट हो जाता है। लेकिन जब कोई गोल्ड का दुकानदार कहीं से गोल्ड खरीद के लाता है, वो उसके लिए स्टॉक हो जाता है, तो वो उसके लिए एक्विजिशन ऑफ असेट माना नहीं जाएगा। तो नेचर ऑफ बिज़नेस देखना है आपको, और फिर वो असेट है कि नहीं ये बताना है। फाइन, सो एक्विजिशन ऑफ असेट अगर है तो वो खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट। इम्प्रूवमेंट म्हणजे कैसे है, आपका एग्जांपल देता हूँ बैंकर लोगों का। आपने बैंक ATM मशीन है जहाँ से पैसा लोग विड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या किया, वही मशीन को एक साइड में अटैचमेंट जोड़ दिया जिससे पैसा डिपॉजिट भी होगा। समझ में आ रही बात है? तो इससे क्या हो गया कि खर्चा तो भैया हुआ है, बट by doing this expenditure your asset has improvised. Are you getting things? And your earning capacity, आपका काम बिजनेस का साइज़ भी बढ़ सकता है। तो ऐसे प्रकार के एक्सपेंडिचर जहाँ पे असेट को इम्प्रोवाइज़ किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एन असेट। फाइन, एक्सटेंशन ऑफ एन asset means what? An asset is extended for further carrying out more capacity work, then it is again called as capital expenditure. Putting new asset into working condition. फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या किया, आप सेम एग्जांपल विद बैंकर, आपने ATM मशीन ख़रीद के लाया जो दिल्ली से सप्लाई हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, वो असेट एकदम ATM मशीन ट्रक से नीचे उतरा और प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा क्या? नो, you need to put it in a proper place, you need to construct a campus for that, you need to install that machine, you need to build some foundation, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो सब खर्चे हैं तो ये एक्सपेंडिचर है, बट दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस विच यू आर डूइंग फॉर पुटिंग द न्यू asset into working condition. So such type of expenditures are again capital expenditure. Next, एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग द असेट। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ। कोई असेट आप खरीदी कर रहे हो, बराबर, और जिसका उपयोग करके आप बिज़नेस आपका बढ़ने वाला है, बिज़नेस साइज़ इम्प्रोवाइज़ होने वाला, बिज़नेस अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, तो उस एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। एक्विजिशन ऑफ अ राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। फ्रेंड्स, ये ऐसे जो पॉइंट्स रहते हैं ना, इधर आप ज़रा ध्यान दिया कीजिए। देखो, असेट एक्विजिशन ये सबको याद रहता है, but such type of points are normally asked in examination. Acquisition of right to carry on business.
से मुझे एक बात बताइए, मुझे एक कॉफ़ी शॉप शुरू करना है, might be after this lockdown I'll begin with a coffee shop, must have friends, cold coffee shop which I love to have, so I want to start such business. तो मुझे सबसे पहले क्या दुकान लेके मैं इमीडिएट चालू करूँगा क्या? The first thing, one of the few things which I need to do at the early stage is to get a food and drug license. दैट इज़ वॉट फूड एंड ड्रग लाइसेंस म्हणजे क्या होता है, एक अधिकार है, एक राइट है कि मैं फूड बिज़नेस कर सकने का वो अधिकार मुझे गवर्नमेंट दे रही है। समझ में आ रहा है? तो ये लाइसेंस के लिए जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा शुरुआत में, उसको आप दैट इज़ नथिंग बट एक्विजिशन ऑफ राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। समझ में आ रहा है? या फिर मैं किसी से पेटेंट लेता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डोमिनोज़ का एजेंसी नागपुर में ले रहा हूँ, तो डोमिनोज़ को मुझे जो प्राइमरी पेमेंट करना पड़ेगा टू एक्वायर द राइट टू कैरी डोमिनोज़ बिजनेस एंड यूज़ हिज नेम, उस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। अच्छा, वन मोर पॉइंट, लेकिन अगले साल से ये जो पैसा मुझे डोमिनोज़ को देना है फॉर रिन्यूअल ऑफ माय लाइसेंस, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये रूटीन वाला बिजनेस खर्चा है। लेकिन फर्स्ट टाइम राइट एक्विजिशन का खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। चलो नेक्स्ट टाइटल पे शिफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ रेवेन्यू। हमने क्या पढ़ रहा है, आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है? वी स्टार्टेड विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑफ फॉलोइंग नेचर आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट इज़ एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द बिजनेस। एकदम सिंपल, आपके बैंक में क्या क्या लगता है रोज़ बैंक चलाने के लिए, आप ही गेस कीजिए। चलो थिंक ऑफ इट। फर्स्ट इज़ यू नीड टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, पेपर स्टेशनरी, बरोबर। और क्या क्या लगता है आपको, आपके लोगों का काम करने का सैलरीज़ है, आजकल पानी का खर्चा भी है, पानी खरीदना पड़ता है, बरोबर। सम बैंक्स में पहले के ज़माने में कूलर्स रेंट पे लगाए जाते थे धूप काले में। तो ऑल दीज सच एक्सपेंसेस which are necessary to run a business, बरोबर, such expenses will be treated as revenue। सही है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसेस incurred to maintain fixed asset। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके बिज़नेस में, आपके बैंकिंग बिज़नेस में एटीएम मशीन से, कंप्यूटर से, हर महीने 2 महीने बाद क्या होता है, उसको मेंटेनेंस के लिए आपने एक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद सम कंपनी। वो लोग आते हैं और चेक करते हैं कि सब फंक्शनिंग बरोबर हो रहा है कि नहीं। उनको जो आप पैसा फीस करके देते हो, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। दैट इज़ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेंटेन फिक्स असेट। बात समझ में आ रही है? देखो, फिक्स्ड असेट खरीदना और फिक्स्ड असेट को इंस्टॉल करने तक का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और फिक्स्ड असेट इंस्टॉल होके वर्किंग कंडीशन में आने के बाद जो एक्सपेंसेस आप करते हो रनिंग, उसको रन करने के लिए, तो उसको आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड इज डेप्रिसिएशन। Depreciation of an asset is again what do you say, it's a revenue expenditure. Fine, let us move ahead with next slide. Purchase of material and goods. In trading business, goods are purchased for sale. Cost of goods sold is to be treated as revenue expense. देखिए, cost of goods sold यानी जो माल आपने खरीद के लाया और उसको बेच दिया, बराबर, cost of goods sold is to be treated as revenue expense. And however, stock held at the end of the period is to be treated as asset. ये नॉर्मली आपके बैंकिंग में ये होता नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग वगैरह किया जा रहा है उस जगह पर। फाइन फ्रेंड्स, लेट मी कंटिन्यू फर्दर। ये अलग है अभी टाइटल, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ध्यान से टाइटल को एक बार रिपीट करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, शुक्रा क्या हो गया, ओके यू मे मूव, फाइन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure. Okay, now these are the revenue expenditures actually, but they are treated as capital expenditure. ऐसे कुछ खास expenses है। देखिए, पहला है legal expense. लीगल एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट। नॉर्मली क्या होता है बताइए मुझे, लीगल एक्सपेंडिचर अगर आपके बैंक को कुछ खर्चा लगता है तो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। बट कोई फिक्स्ड असेट के परचेस करते समय कोई लीगल एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको आप रेवेन्यू ना बोलते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। फाइन। सेकेंड पॉइंट आर वेजेस। वेजेस और सैलरीज जो रहता है ना फ्रेंड्स, ये नॉर्मली रेवेन्यू में आता है क्योंकि ये हर महीने दिया जाता है और वो कंज्यूम होता है, बरोबर।
तो लेकिन देखिए अब एक एग्जांपल देता हूँ, वही एटीएम मशीन वाला, आपके बैंक में एटीएम मशीन इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल करते समय जो इंजीनियर को इंस्टॉलेशन का फ़ीस आपसे 10,000 रुपीज़ वो वन टाइम उसने लिया और वो चला गया। किस लिए? तो वो ट्रेनिंग देने के लिए आया है कि वो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, और उसने टेक्निकली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा किया। तो ऐसे वेजेस को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, रेवेन्यू नहीं बोलना है। देखिए एक लाइन याद रखिए मैं जो बता रहा हूँ, फिक्स्ड असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जो खर्चा होता है ना, वो सभी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना है। फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपेयर्स। नॉर्मली हमको क्या लगता है कि रिपेयर आइटम है म्हणजे असेट को मेंटेन सॉरी फ्रेंड्स, रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स ये जो है, तो हमको क्या लगता है कि रिपेयर मतलब असेट को मेंटेन करने के लिए किया हुआ खर्चा, बरोबर। तो असेट को मेंटेन करने के लिए किया हुआ खर्चा रिपेयर्स का जो रहेगा उसको आप रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर में ही डालोगे, करेक्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, मैंने 2 साल पहले एक मारुति आल्टो सेकेंड हैंड गाड़ी एक ख़रीदी किया। अब वो सेकेंड हैंड लेने के कारण क्या हुआ कि मुझे एक 20-25,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ा वो गाड़ी को नॉर्मल एक गुड वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो ऐसे प्रकार के खर्चे को, रिपेयर्स को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, बिकॉज इट वाज टू ब्रिंग दैट सेकेंड हैंड असेट टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। फाइन, समझ में आ रहा है? ओके, द नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ व्हाट एग्जैक्टली? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। फाइन, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैंक का ब्रांच एक्सपांड कर रहे हैं, या आई एम सेटिंग अप अ ब्रांच इन सम सिटी। तो ऐसे समय क्या होगा कि वहाँ पर ब्रांच बनाने के लिए हम कुछ लोन लिया है, और वो लोन का जो इंटरेस्ट भर रहे हैं जब तक वो असेट क्रिएट नहीं होता है, उस चीज़ को, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीटमेंट दोगे। ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? ओके, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। This is consumption of raw material and store. Consumption of raw material consumed in construction of fixed asset. इसको आप क्या बोलोगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको ट्रीट करना है। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कोई असेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करोगे, या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई करोगे। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, बराबर। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द असेट परचेस्ड। एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड अ दाल मिल इन अकोला। वो दाल मिल का जो मशीन था वो मुझे इंदौर से अकोला में लाना था, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ा वो मशीन को लाने के लिए, तो आप इसको नॉर्मली क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट के खर्चे को रेवेन्यू माना जाता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं किराना दुकानदार हूँ, मेरे पास एक टेम्पो है जिससे मैं लोगों को होम डिलीवरी सामान पहुँचाता हूँ, और वो टेम्पो का जो खर्चा है वो मेरे दुकान के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मेरे दुकान में जब कोई असेट परचेस हो रहा है, मैं एटीएम मशीन इंस्टॉल कर रहा हूँ, या फिर मैंने एग्जांपल दिया वैसे मैं दाल मिल का मशीनरी इंदौर से ला रहा हूँ, तो वो वाला जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन मोर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड। आपको फ्रेंड्स ये जेस्टेशन वर्ड का मतलब समझ में आता है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, चंदन के झाड़ लगाया, और मुझे आई वांट टू क्रिएट वुड, सैंडलवुड, हाँ उससे कुछ मुझे आगे प्रोसेसिंग करना है, आई वांट सैंडलवुड। तो क्या मैंने लगाया और 1 महीने में चंदन के झाड़ आ गए और बिज़नेस चालू हो गया, ऐसे होगा क्या? नो। ऑलमोस्ट लाइक सैंडलवुड ट्री, इट विल ग्रो, उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, कुछ ईयर्स होते हैं, उतने दिनों तक मुझे रुकना पड़ता है। इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। सो देर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड इन सम बिजनेस लाइक टी, रबर प्लांटेशन। तो एक्सपेंडिचर, ये प्लांट्स डेवलप होके ये नॉर्मलाइज होने तक का जो खर्चा है, ठीक है, अप टू लाइक दिस सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया स्लाइड आपके लिए, इसमें आप कंपैरिजन कर सकोगे। कैन यू सी, यू कैन कंपेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
See, on the left side I have given the title capital expenditure and on the right side it's revenue expenditure. Fine. देखिए बहुत इजी, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा. पॉइंट नंबर 1, अमाउंट स्पेंड इज़ यूजुअली लार्ज. कैपिटल एक्सपेंडिचर में अमाउंट जो खर्चा होता है वो नॉर्मली लार्ज होता है, यूजुअली लार्ज होता है. बट अगेन स्टार मार्क, हाँ, अमाउंट बड़ा खर्चा हो गया म्हणजे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ और ऐसा आपने एज्यूम भी नहीं करना है. दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर टू डिसाइड, इट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर. आपको समझ में आ रहा है? अमाउंट बड़ा हो गया खर्चा म्हणजे वो कैपिटल, नो ही नहीं. हाँ, ऐसा अंग्रेजी लाइन हमने लिखा है कि अमाउंट स्पेंट इज़ यूजुअली लार्ज होता है, बरोबर, क्योंकि बड़े एसेट्स आप खरीदी कुछ कर रहे हो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में द अमाउंट जो होता है वो नॉर्मली स्मॉल अमाउंट खर्चा रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कब बोला जाएगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव और एनहांस द बिजनेस और अर्निंग कैपेसिटी. कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि आपके बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. देखिए फिर से फ़न एग्जांपल, स्टडी विद फन. मेरे घर में ओवन आ गया, मेरी बीवी चिल्ला रही थी कि अरे क्या खर्चा कर दिया. ओके, बट आई टोल्ड हर दिस इज़ नॉट अ खर्चा, दिस इज़ नॉट एक्सपेंडिचर, ये एक इन्वेस्टमेंट है. क्यों? तो अभी ये आपको समझ में आएगा कि उससे क्या हुआ, हमारे घर के किचन का कुकिंग कैपेसिटी बढ़ गया. आपको समझ में आ रहा है? खर्चा नहीं हुआ है. हम आज ओवन पे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, हम और केक बेक कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे, बरोबर. सो आवर कैपेसिटी इंक्रीज्ड. सो इट इज़ नॉट रेवेन्यू, इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगेन रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि इट इज़ टू मेंटेन द फिक्स्ड असेट इन वर्किंग कंडीशन. नेक्स्ट स्लाइड इज़ अगेन द सेम डिफरेंस गोज़ ऑन. कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली नॉन रिकरिंग होते हैं. अब एक बात बताइए, आप क्या हर महीना एटीएम मशीन खरीदते हो क्या? नो, इट इज़ टू बी केप्ट एट द प्लेस एंड यू आर अर्निंग बाय यूजिंग दैट मशीन. तो ये एटीएम मशीन लगाने का खर्चा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये नॉन रिकरिंग है. लेकिन इसमें लगने वाला जो पेपर स्टेशनरी है तो वो आपको बार बार भरते रहना पड़ेगा, करेक्ट. तो वो रिकरिंग है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा. फाइन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ये परीक्षा में नक्की पूछते हैं. ठीक है, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये खर्चा बैलेंस शीट में बताया जाता है, एंड वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बताया जाता है. तो आपका करंट ईयर का आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस में है आपकी नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगा. रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में रहते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों बैलेंस शीट में बताए जाते हैं. अभी जो मैंने पॉइंट बताया इसको आप अच्छे से याद रखना, ये परीक्षा में काम में आएगा. वी आर कमिंग क्लोज टू आवर वीडियो. नेक्स्ट इज़ माय टाइटल इज़ कैपिटल. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट बहुत इजी है. देखिए कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से होती है, तो इशू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर. जैसे कोई शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं और उससे जब कंपनी पैसा रेज़ करती है, ऐसे आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले IRCTC नाम का जो रेलवेज़ कंपनी है, तो उन्होंने शेयर्स इशू करके पैसा रेज़ किया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है. ठीक है. उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. नाउ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट ये क्या मतलब है? डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट म्हणजे आपके बैंक में से कोई पुराने असेट्स थे वो आपने सेल आउट कर दिया, या आपके पास में जो एग्जिस्टिंग असेट्स है वो आपने बेच दिया, करेक्ट. तो उसको आप, उससे जो पैसा आएगा उसको आप कैपिटल रिसिप्ट्स करके बोलोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ कैपिटल असेट. बिल्डिंग ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिलती है. ठीक है. कुछ एरियाज़ में, कुछ टाइप ऑफ बिजनेसेस में गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स मिलती है, और ऐसा जो पैसा आपको मिलेगा उसको आप कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे. देन नेक्स्ट इज़ रिसिप्ट फ्रॉम प्रोपराइटर्स एज कैपिटल और लोन रिसिप्ट.
सी ध्यान से देखिए, मैं किराना दुकानदार हूँ और हमारे किराना ग्रॉसरी शॉप में हमने क्या किया, मेरा ऑलरेडी 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था खुद का। अब मैं उसमें और 2 लाख रुपए ऐड कर रहा हूँ, तो ये 2 लाख रुपए मैंने मेरे दुकान में दे दिया, बरोबर, और मैं हूँ उसका प्रोपराइटर। तो ये जो 2 लाख रुपए दुकान में दिया, इसको आप कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे, क्योंकि ये प्रोपराइटर से दुकान में आया हुआ पैसा है। इट इज़ अ रिसिप्ट फ्रॉम प्रोपराइटर, सो इट्स कैपिटल फॉर द बिजनेस, तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट करके बोलना है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बरोबर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए आप रूटीन बिजनेस कर रहे हो और जिससे आपको माल, जैसे ग्रॉसरी शॉप है हमारा, माल बेच के गिराहक मुझे पैसा दे रहा है, कस्टमर मुझे पैसा जमा कर रहा है, तो माल बेच के पैसा जमा होगा, ये वाले रिसिप्ट को आप रेवेन्यू रिसिप्ट सिंपली बोलोगे। रेवेन्यू रिसिप्ट आर रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जितनी होंगी ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट जो शुरुआत में हमने पढ़ा, ठीक है, वो दोनों बैलेंस शीट में बताया जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में बताया जाता है। फाइन, होप you got what I wanted to highlight. Fine. So friends, it's quite a long video. अब हम लोग यहाँ पर रुकते हैं. I'll just stop. So friends, thank you so much for patiently watching the video, and also it's a kind request to all of you. ये जो टॉपिक है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप, ये वीडियो को चाहिए तो 2 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए and maintain it a proper record of whatever you are studying. It's purely a theoretical topic and which will add lot amount of marks in your exam. Passing में ये बहुत help करेगा. For any query you can just contact me on my phone number 9422193395. हमारा जो YouTube का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, so that you will get notifications about new videos. So that's all from my side. Thank you and keep watching our channel. Namaskar.